Hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So in this particular session we are going to discuss another important case study for the BFM, right? So we'll discuss the module B, something related to operational risk, right? So I'm Sumant. Let's start the session for today's class. So let me show you the case study first, and before attempting this we are also trying to add in some concept. Whatever we are going to calculate, we'll add the concept that what is the basic definitions, right? So let's start it. So here is the one of the case study, that is we need to calculate some factors related to operational risk, right? So for operational risks we need to calculate the capital, and for that we need to calculate some other part like gross income and operational profits, operating profit and etc. That is like capital charge as well, right? So for operational risk, before going further I would like to mention that the basic approach is that what we are going to use, that is basic indicator approach. Here you can see in the question number 2, the basic indicator approach has been used for calculating some factors related to operational risk, right? Why we are using the basic indicator risk? For that we need to know more details regarding the basic indicator risk. Before that, it's simpler than other approaches. We have 3 approaches in Basel 2. So in comparison to other approaches, the basic indicator approach is the simplest one. So we'll get to know the basic definitions under the basic indicator approach as well. So let's first read the question first, and one by one while we are going through the questions we'll get to know the definitions as well, right? So let's start it. So here you can see the question is like, the financial results of an international bank as on March 31st 2010 provides the following information, right? Interest on, that is 24,000 crore. So one second. Okay, so you can see that is interest on, whatever the interest on, that is 24,000 crore. You can see. So the other non-interest income, that means other than the interest income, some other incomes as well. So that is 3,600 crore. Profit on sale of fixed assets. So fixed asset को जो सेल करने के बाद जो भी उनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है, that is 240 करोड़. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट. जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होता है, that is insurance and other products, right? In case of बैंक, द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इज द इंश्योरेंस वन, वी कैन से, राइट? सो इसमें जो इनकम उनका हुआ है, दैट इज, इसमें हमारा क्या होता है, कमीशन होता है ऑब्वियसली. वी कैन से commission income on third party products, that is 160 crore. Interest paid, that means interest paid means paid to the डिपोजिटर्स ऑब्वियसली, राइट? इंटरेस्ट ऑन मींस ये हमारा लोन प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है जितना हमारा क्रेडिट होता है, और इंटरेस्ट पेड हम क्या होता है, ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है? सो ये हमारा इनकम होता है और ये हमारा एक्सपेंस होता है, एंड किस में पेड हो जाता है, दैट इज डिपॉजिट में, ठीक है? सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में जो भी हमारा मेंटेन करने के लिए हुआ है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 7,600 एंड प्रोविजंस 3,200 करोड़. प्रोविजंस मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ये जो है हमारा जो मतलब प्रोविजन हम इसीलिए करते हैं, सो दैट जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए हम क्वार्टर 1 का प्रोविजन करते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वार्टर 1 का कुछ एक्सपेंसेस है जो कि क्वार्टर 1 में ही होना चाहिए, वो कि आपका क्वार्टर 2 में रिफ्लेक्ट ना करे. द सेम एक्सपेंसेस विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द क्वार्टर 2, सो दैट वी डू द प्रोविजंस, राइट? सो फॉर प्रोविजंस इट्स लाइक 3,200. अगर क्वार्टर 1 का यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, पकड़ लीजिए यहाँ पर हमारा 100 रुपये का है, पर आपको बोल रहा हूँ एक 100 रुपये का एक्सपेंस है जो कि हमने यहाँ पर प्रोविजन नहीं की, तो जब हम अकाउंट में डेबिट करेंगे वो तो हमें एक्सपेंस करना ही होगा, कि वहाँ से हमारा मतलब हो रहा है डे टू डे लाइफ में बैंक में, उसको हम क्वार्टर 2 में करेंगे जब ऑब्वियसली 31 कवर हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपका क्वार्टर 2 का जो इनकम है इससे ये डिडक्ट हो जाएगा. अगर हम प्रोविजन करते हैं, दैट मीन्स ये जो 100 रुपये का हम प्रोविजन किए हैं ये आपका क्वार्टर 1, अगर आप क्वार्टर 2 में भी करेंगे फिर भी ये क्वार्टर 1 का इनकम से ही डिडक्ट होगा. सो दैट्स व्हाई हम जो नेक्स्ट जो है अपकमिंग जो है इनकम को मतलब एडजस्ट करने के लिए या उसको नॉट अफेक्टेड करने के लिए हम प्रोविजंस करते हैं. बेसिक लैंग्वेज में है, आप उसको एनपीए के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है?
सो एनपीए में वही प्रोविजन सब करते हैं, दैट इज जो एक्सपेक्टेड, मतलब क्वार्टर 1 का जो है एनपीए प्रोविजन हम अगर करते हैं जो कि आपका क्वार्टर 2 में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई, ठीक है। सो प्रोविजंस के लिए आपका 3200 और यहाँ पर इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस कितना हुआ है 15,600 करोड़, ठीक है। सो ये आपका बेसिक डिटेल्स दिया गया है। वी नीड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिक गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग्स, राइट। So by using this details, we need to calculate. The first question is what is the amount of operating profit. So we need to calculate the operating profit here. So first question is, option is 1600 crore, 4800 crore, 6400 crore, and inadequate information. Inadequate information we can calculate. So before that we need to know how to calculate the operating profit. So for OP, the formula is, we need to see. So before that we need to know what is the meaning of operating profit. Let me show you this first, later on I will show. So operating profit means a profit from business operations, gross profit minus operating expenses before deduction of interest and taxes. सो जो भी हमारा इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है उसको पे करने से पहले ही व्हाट एवर द इनकम दैट इज एनी प्रॉफिट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम एनी बिजनेस ऑपरेशन, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब अगर हमारा ओवरऑल 1000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उससे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमारा 100 है देन हमारा 900 हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सो बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सो इट इज आल्सो नोन एज EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. So that is also known as operating profit, right? So it is important to note that many companies track both operating profit and gross profit. So जो भी कंपनीज है उनका ग्रॉस प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्रैक किया जाता है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। इससे क्या होता है ना, आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, देन वी आर गेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट? सो नॉर्मली वी आर ट्रैकिंग बोथ ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी फिलहाल हमारा जो है बैंक जो है कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा था ईयरली, ठीक है, उसमें कुछ कुछ बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, ठीक है। सो पर उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो भी क्राइटेरिया था उसमें कम हो रहा था, इसीलिए किसी किसी को मिला है 5%, किसी को मिला है 10%, किसी को मिला है 15%। सो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, राइट? सो होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया होगा इसका जो है बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो इसका जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली, इसको अगर डाटा को देख ले, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होता है इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्लस अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। सो नेक्स्ट होता है प्रॉफिट, ये जो है इसको हम ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो भी आपका इनकम जनरेट होता है सब इनकम को मिला लेते हैं पहले, प्रॉफिट ऑफ, सॉरी दिस इज ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। सो उसके साथ हम और भी जो है हमारा इनकम है, ये आपका जो है इनकम मैं थर्ड पार्टी लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, फ्रॉम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट है दैट इज जो भी हमारा एक्सपेंसेस है उसको हम माइनस कर लेंगे, ये हो गया हमारा सब जितना इनकम है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग ये हमारा क्या है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब क्या है टोटल ओवरऑल हमारा कितना इनकम है, मतलब जितना भी हमारा होता है, ठीक है। सो ग्रॉस ये है, ये हमारा ग्रॉस इनकम, ठीक है। ग्रॉस इनकम से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो जो हमारा एक्सपेंस भी हुआ है, सो इसमें हमारा क्या है इंटरेस्ट पेड हुआ है, इंटरेस्ट पेड भी हमारा एक इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस में भी जा रहा है, ठीक है। सो माइनस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। सो ये जो रहेगा हमारा, इस सब करने के बाद वी विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू दिया गया है, यू कैन इजीली कैलकुलेट हियर। सो यहाँ पर है दैट इज 24,000 प्लस 3,600 प्लस प्रॉफिट अर्न दैट इज 240 प्लस इंटरेस्ट इनकम
160 एंड इसको ऐड कर देना है, आपको माइनस करना है। इंटरेस्ट पेड है 15,600 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 7,600। गॉट इट? सो इसको अगर फाइनल कैलकुलेट करेंगे विल गेट द फाइनल आंसर एज 4,800। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपको ये वाला याद रखना है, बस इसको सिंपली यूज करिए। जैसे हम ग्रॉस सैलरी से जो भी हमारा डिडक्शन है उसको माइनस कर लेते हैं, जो भी हमारा एक्सपेंस है उसको अगर माइनस कर लेंगे विल गेट द नेट इनकम। ठीक है, सो इसमें भी वही है, जो आपका ग्रॉस इनकम रहेगा उसे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओपी एक्सपेंस को माइनस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ओपी, दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। सो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू कैन सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम एज फॉर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, मतलब बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंगली एज पर द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस इनकम, राइट। So before that we will just have some basic idea of basic indicator approach. So basic indicator approach here you can see is an approach to calculate operational risk. So ये जो approach है we use this methodology to calculate the operational risk. There are three methodology and this is the simplest one. That's why I prefer to use this basic indicator approach for calculation of operational risk capital, right, under Vassell to Akers and uses the, इसमें क्या होता है basic indicator approach में what we normally do, it uses the bank's total gross income. इसमें जो बैंक का जो total gross income है ये आज ए फैक्टर इंक्लूड किया जाता है आज ए रिस्क इंडिकेटर फॉर द बैंक्स ऑपरेशनल रिस्क एक्सपोजर। इसको एक रिस्क इंडिकेटर लिया जाता है, इसमें मेन फैक्टर क्या होता है टोटल ग्रॉस इनकम एंड सेट्स द रिक्वायर्ड लेवल ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल एज 15% ऑफ द बैंक्स एनुअल पॉजिटिव ग्रॉस इनकम एवरेज्ड ओवर द प्रीवियस 3 इयर्स। ठीक है, सो लास्ट 3 ईयर में जो भी आपका ग्रॉस इनकम है उसको एवरेज किया जाएगा डिवाइड बाय 3 करके एंड जो भी आएगा दैट इज 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम and we'll get the capital for the basic indicator approach, right? So here you can see how to calculate what is the amount of gross income as per the बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। सो इसमें हमारा जो है 15% करने के बाद विल गेट द कैपिटल चार्ज, उसको बारे में आपको नेक्स्ट में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है विल हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस इनकम। सो ग्रॉस इनकम के कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज जो भी हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम है ठीक है प्लस आपका जो है नॉट नेट जो है नॉन इंटरेस्ट जो भी हमारा नॉन नेट इंटरेस्ट इनकम है प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसको हम ऐड कर देंगे। सो नेट इंटरेस्ट इनकम में हम क्या करेंगे, इसमें जो है आपका एक रहता है दैट इज हाउ टू, इसमें एक पॉइंट है कि वी विल कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट इनकम दैट इज इंटरेस्ट ऑन माइनस इंटरेस्ट पेड। ठीक है, सो इसके साथ हमारा क्या ऐड हो जाएगा नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, सो यहां पर हमारा देखिए इंटरेस्ट ऑन कितना है 24,000 करोड़। ठीक है, माइनस इंटरेस्ट पेड कितना है 15,600 करोड़ और इसके साथ हमारा एडिशन क्या होगा नॉन इंटरेस्ट इनकम दैट इज 3,600 करोड़। ठीक है, सो विल गेट द फाइनली ग्रॉस इनकम कितना है हमारा दैट इज विल, अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे विल गेट समथिंग लाइक 12,000। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली यू गॉट इट हाउ टू कैलकुलेट, आपको बस ये वाला याद रखना है। ठीक है, सो ये वाला एक इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिक आपको इनकम से एक्सपेंस जो है उसको माइनस कर लेना है, विल गेट द ग्रॉस इनकम फॉर दैट एंड आपको नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे मिलेगा आपको ये वाला को याद रखना है इंटरेस्ट ऑन माइनस इंटरेस्ट पेड। गॉट इट।
So we'll see the next question. What is the amount of capital charge for operational risk under basic indicator approach? So अभी मैं आपको बस बता रहा था, ये जो 15% है ना ऑफ ग्रॉस इनकम, इसको हम कैलकुलेट करने के बाद जो आता है हमारा दैट इज कैपिटल चार्ज। ठीक है, इसका फार्मूला है वही 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम और एवरेज कर लेंगे लास्ट 3 ईयर का, राइट। सो इसमें वही है दैट इज जो भी हमारा कैपिटल चार्ज है उसको, और कैपिटल चार्ज क्या है एक्चुअली, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल चार्ज? ये जो आपका ग्रॉस इनकम, इसका फॉर्मूला है ऑब्वियसली ग्रॉस इनकम मल्टीप्लाई विथ 15%। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा कैपिटल चार्ज ऑफ फॉर ऑपरेशनल रिस्क OR। ठीक है, सो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। और अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल चार्ज, आपका ये रहेगा कैपिटल चार्ज है नॉर्मली कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमारा जो नॉर्मल बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा दैट इज द बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो नोन एज रेगुलेटरी कैपिटल और कैपिटल एडिक्वेसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी? इट्स लाइक यू नो वी नो दैट CAR, आपको अभी नेक्स्ट में ये वाला के बारे में डिटेल्स में थोड़ा मैं बता दूंगा। ठीक है, बस कैपिटल चार्ज है यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज कैपिटल रिक्वायरमेंट वी कैन से। एंड इसका जो सिंपली डेफिनेशन है, द कॉस्ट टू ए कंपनी ऑफ बोरोइंग मनी टू बाय और इंप्रूव द बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट्स दैट इट यूजेस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडेड सर्विस। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्वियसली वट एवर द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय एनी टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज to buy or improve their properties or their business, we can say that is capital charge. Just the basic definition, and as per the Basel जो है operational risk में sorry, so capital charge को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर CC पकड़ेंगे so capital charge होगा ग्रॉस इनकम का 15%। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको हमें मिल गया है ग्रॉस इनकम, अभी जस्ट रिसेंटली में यहाँ पर मिला था। ग्रॉस इनकम कितना होता है, दैट इज ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला क्या है आपको, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पेड माइनस, सॉरी इसको ऐड करना है, ठीक है, और पेड माइनस इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन से माइनस कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका ये वाला। सो इसका हमारा आया था 12,000 करोड़। सो अभी हमारा 12,000 करोड़ का 15%, सो 10% है 1200 और 1500 हो गया आपका, देखिए कैसे निकल रहे हैं, 1200 प्लस ये हो गया 600 दैट इज 1800। सो 1800 ये हो गया आपका 10%। ठीक है, सो ये जो है 1800 करोड़ विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ऑफ बी इज द करेक्ट आंसर। बस आपको याद रखना है जो भी हम कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा आपका ग्रॉस इनकम का 15%। 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल charge for the operational risk, right? So what is the capital charge? That is, we can in basic word, this is the basic capital requirement. So we'll see the next question. Here you can see what is the amount of risk weighted asset. So RWA for operational risk under basic indicator approach. So इसमें जो है operational risk RWA है उसको हमारा कितना है, ठीक है। So RWA for operational risk under basic indicator approach, how to calculate? So RWA का यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा, इसका जो फॉर्मूला है दिस इज कैपिटल चार्ज डिवाइडेड बाय मिनिमम बासेल, ये हम बासेल 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बासेल 2 CAR क्या हो जाएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है आपको अगर बेसिक में बता दें, ठीक है। सो कैपिटल एडिक्वेसी आपका रहेगा द मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये एक मिनिमम जो है, मिनिमम कैपिटल जो है एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रहना जरूरी है। अगर पकड़ लेंगे XYZ इज द बैंक, इसके
एक मिनिमम कैपिटल पकड़ लेते हैं इसको, 100 करोड़ का मिनिमम कैपिटल इसका जो है रिजर्व रहना चाहिए। दिस इज द एडिक्वेसी, मतलब रिक्वायरमेंट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? मेन बात है कि व्हाई वी नीड दिस मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर एवरी बैंक, राइट। कितना होना चाहिए वो है अभी हमारा फिक्स हुआ है। पहले आपको जान लेना है कि ये क्यों, व्हाई दिस इज नीडेड। दिस इज नीडेड, दिस मिनिमम कैपिटल विल बी हेल्पफुल to absorb any types of losses, absorb any something like unexpected losses, any unexpected losses, ठीक है। कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, ह्यूज लॉस हो गया, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश किया जाएगा दैट बाय यूजिंग दिस मिनिमम कैपिटल व्हाट एवर दैट हैज बीन स्टोर्ड एंड बिफोर कब, मतलब ये कब, इट्स लाइक ए लास्ट रिसोर्ट टाइप का हम यूज किया जाएगा, ठीक है। बिफोर बिकमिंग इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स उस टाइम आपका वो जो बैंक है XYZ दैट कैन नॉट बी रन, मतलब वो रन नहीं कर पाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। उससे पहले उसको बचाने के लिए हम ये जो मिनिमम कैपिटल है उसको यूज करेंगे। इसीलिए बैसेल 2 बनाया गया था, सो दैट कोई भी जो है बड़ा बड़ा अगर कोई बैंक है, ठीक है, अभी हमारे जैसे इंडिया में अभी पकड़ लीजिए SBI है, जे बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB है, ठीक है, कनाडा बैंक है, और HDFC, ICICI, अगर कोई भी बैंक अगर मतलब पकड़ लीजिए कोई एक बड़ा वाला NPA हो गया, ठीक है, उस अनएक्सपेक्टेड जो लॉस हो जाएगा बैंक का, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उनके पास कैपिटल होना जरूरी है। अगर वो सब कुछ लैंड कर देंगे, उनके पास कोई कैपिटल नहीं बचा, ठीक है, वो अपने पास नहीं बचा, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या होता है ना, बैंक उस टाइम इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए तो हमारा बैसल बनाया गया था ना कि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होता है इन द फाइनेंशियल सिचुएशन, उसको फेस करने के लिए उसको समथिंग लाइक ट्राई टू बी रेक्टिफाइड, ठीक है, उसको ट्राई करने के लिए कि थोड़ा होल्डन हो जाए कुछ टाइम के लिए, सो इसको उस टाइम यूज किया जाएगा। सो अभी एज पर द बैसल 2 हमारा जो है मिनिमम कैपिटल बैसल 2 के अंदर, बैसल 2 के अंदर जो है हमारा CAR दैट इज 8%, और जो बैसल 3, अभी जो बैसल 3 उसका अपडेटेड वर्जन है, वहां पर है जो कैपिटल दैट इज 10.5%। 8% मतलब अगर किसी बैंक का 800 है कंप्लीटली, ठीक है, सो उसको 8% रखना होगा, ठीक है। सो 8% मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर कितना होता है 8%, 8, 10% 80, ओके, इसका 8% दैट इज 64 करोड़ रखना होगा, ठीक है। और आपको बैसल 3 के अंदर 800 का 10.5% रखना होगा, ठीक है। 10.5 मतलब आपका 80 हो गया, 10.5 हो जाएगा 4, दैट इज 84 करोड़ रखना होगा आज पर बैसल 3। सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यू कैन सी। सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों होता है, गॉट इट। सो हियर इज सी कैपिटल चार्ज, अभी हम जस्ट रिसेंटली कैलकुलेट किए, कैपिटल चार्ज हमारा कितना है दैट इज 800 करोड़। सो कैपिटल चार्ज हमारा हो गया 800 करोड़, और मिनिमम बैसल 2 का जो है CAR के लिए दैट इज 8%। सो यहाँ पर आपका हो गया 8%, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल चार्ज का 8%, ठीक है। सो 1800 डिवाइड बाई 8 इंटू हो जाएगा आपका 100, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे विल गेट समथिंग 2, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2, नेक्स्ट हो जाएगा 4, 40 दैट इज 500, ठीक है। सो 22,500 करोड़ जो रहेगा आपका रिस्क वेटेड एसेट के लिए, ठीक है। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये वाला कुछ था आपका ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें से यूजफुल बना होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू पुट सम concepts as well while describing while analyzing any types of case study, and I will also suggest you all of you read the theories once, and later on try to relate all the theories with respect to the case study. Then only you can easily analyze the questions in the CIB exams. Then only you will say that it's not that much difficult, it's like doable one, because in CIB exam, in real CIB exams,
most important thing is that how much you can able to analyze the questions, then only your percentage of clearing the exams will be more high, right? So that's why I also try to put some effort for the case study as well. And while analyzing the case study, we'll get to know the theories as well. Here you can see, while solving the case study, we need to know the theories as well, right? So hopefully, if you like this session, then do like, share, subscribe, at least share with your friends, those who are preparing for the exams. And if you like it, then do hit the like button as well, so that we'll our videos will have some views, so that it will be published in the YouTube का जो है guidelines, उसके accordingly वो जरूरी होता है. Hopefully आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है? So do your part. I am also trying to give my effort for your preparation as well, right? So thanks for watching, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में. और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग एंड बी सेफ एंड व्हाइल लर्निंग. सो आपको ये वाला जो है ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप. उसमें अभी मतलब अभी जो एग्ज़ाम नियरेस्ट हो जाएगा तो हम वहाँ पर क्विजेस वगैरह भी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? सो यू कैन डिस्कस देयर एज वेल. सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.